and welcome, boys, to the second episode of our new podcast, 90 plus 3. I see Ayush, you're very happy. Your favorite player scored. Yeah. Uh, let's start with, we'll get to your team as well. Let's start with Arsenal to begin with in our top six discussion. So, Arsenal, they had a good game, even 1-0 matters to them now because they're winning. They started winning. So, thoughts about them, Suyash? Yeah, Burnley away is like a good result. Even without context, Burnley away, a win, 3 points, clean sheet, it's like a very good result. And with context, it sounds even better because Arsenal, I think they won the last game against Norwich 1-0, and they can keep going. They can keep going and have 1-0 results and जीत सकते हैं वो लोग ऐसे भी, and they can, because I think because I really one think दिन बर्नी का solid result लगता है. रहता है usually आयुष. हाँ. क्या 1-0 is Burnley's forte, like they win 1-0. Right. 1-0 उनका है forte. हाँ. उनके फिक्सचर रन भी बहुत सही है यार. उनके डिफेंडर्स भी फैंटेसी में टारगेट करने चाहिए. एंड गेम इटसेल्फ का बोले तो फिर ओडेगार्ड का फ्री किक बहुत सही था. एंड बहुत बढ़िया था. Yes. बहुत it was very nice. I didn't get to see the entire game, but I saw highlights, a 10-minute highlight after the game, and yeah, Arsenal played well, and yeah, played solid, had a 1-0 win. It's good for them, and I hope that this run continues. I'm glad for Arsenal because दिल से लगता है कि वो जीते यार. मतलब मेरे को गरीब वाली फीलिंग आती है आर्सेनल को देख के. तो ऐसे दान दे देते हैं तो अच्छा लगता है. प्लस इज गुड कि वो ये सब स्मॉल फिक्चर्स, इजी फिक्चर्स में दे आर निकिंग अवे द विन. 1-0 भी है, उनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है. दे हैड पार्टी बैक इन दिस मैच. फिर उसके बाद ओडेगार्ड ने, दे वर चेजिंग आफ्टर हिम. आई थिंक जून जुलाई में इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि रियल मैड्रिड रिलीज करेगा. देन वन ऑफ सडन उसने रिलीज कर दिया. दे वर आफ्टर मैडिसन बट ओडेगार्ड वाज द मेन चॉइस. So it's good कि एक 1-0 nick कर रहे हैं. Also, their new recruit Tomiyasu is doing very well. He is fitting very well, and Arteta can now with the players that he has, he will try a different formation which he is trying, and it's looking good. तो देखते हैं Arsenal का फिलहाल तो, because with Arsenal you never know, 2 game अच्छा चलता है and then the next 2 games can be very bad, and then the internet will like. Plus their board has been supportive, which is very good. They are staying with Arteta, and not these sack rumors are not roaming around Arteta yet, which is good, which also helps their confidence. It's good for all the other fans as well, because if Arteta keeps winning, they'll keep him at Arsenal till, I don't know, December तक रख लेंगे. तो Arteta रखे रहो, थोड़ा थोड़ा जीतते रहो बीच में. वो भी सही है. So yeah, I was going to move on to Liverpool because they also had a very decent game. 3-0. Salah with a goal and assist. Keita with a brilliant goal. So yeah, talk about that. They are again going under the radar, and if you see, no one, Trent and Robertson, it's the first time I think after 2017 or 18 that both the fullbacks were not playing. It was Milner and Tsimikas, and they still were playing beautiful. So I saw the match, and I told you last week, Liverpool, मैं बोल रहा हूँ under एकदम कोई ध्यान नहीं दे रहा, but they are going to compete 100%. And I feel it's 50% of it is because of Van Dijk, because he brings out so much positivity at the back that the entire team goes ahead and हार में जाए सब. नहीं, but I think Liverpool goals, they were very lucky. क्योंकि lucky मतलब corner से 2 goals थे, and Palace started really well, and Palace could have scored starting में ही, but Palace didn't score, and Liverpool took their chances on क्या बोलते corners. माने ने मारा, उस साला का हेडर के बाद रिबाउंड होके माने ने मारा. सेकंड गोल भी साला कॉर्नर से मारा. It was a good, मतलब improvised finish by Salah. And then third goal was a rebound. तो individual brilliance था bro. So it's like still fine margins from me. The scoreline doesn't tell the story. I wouldn't still hype Liverpool too much क्योंकि Van Dijk इंजर नहीं होगा. Let's not say बेचारा बहुत बड़ी इंजरी के बाद वापस आया. पर एक प्लेयर का वो कमांडिंग ना, it can only get you so इतना ही आगे लेके जा सकता है. बट एक ऐसी टीम मिलेगी वो लोग को अगेंस्ट जो फिर जैसे चेल्सी मिल गया सामने, सिर्फ Van Dijk वो होगा. But there will only be like 1 or 2 big clashes which we will see, they'll have to be very off, because most of the season ये जो छोटा मोटा wins and जो tough fixtures, अभी fixtures जो maybe last season नहीं जीत पा रहे थे, या लोगों को मतलब लिवरपूल को हल्के में थोड़ा बोलते ना अपन ले रहे थे because they didn't have Van Dijk. मतलब लोगों को लगा कि now we can attack Liverpool. That has come down a little bit because now they know that this guy is back, and you know अभी थोड़ा defensively shore up हो गए. बिग मैचेस में तो टेस्ट होगा. लाइटली नहीं बोलूंगा, बट ऑनेस्टली मैं अभी भी उसको बहुत बड़ा चैलेंज नहीं ले रहा. आई एम स्टिल ऑन माय इनिशियल ओपिनियन कि ओके लिवरपूल विल कम्पीट, अच्छा टॉप 4 में रहेगा.
बट या जैसे यस तू बहुत कॉन्फिडेंट है ना कि लिवरपूल कैन भी वो चकमा कर सकता है, कुछ कर सकते हैं सीजन, मुझे इतना वो फील नहीं आ रहा अभी भी। So that was Liverpool. Okay, routine तो नहीं कह सकते, but a good solid 3-0 win. And moving on to your team, let's talk about Manchester United. Yeah, United डिफिकल्ट गेम टू बी ऑनेस्ट, वेस्ट हैम के अगेंस्ट वेस्ट हैम के फैंस भी भाई स्कैरी, डिफिकल्ट गेम, और वो लोगों ने प्रूव भी किया, फर्स्ट हाफ भी अच्छे खेल रहे थे वो लोग। रोनाल्डो स्कोर्ड, आई मीन आई कांट से इट्स लकी बिकॉज़ ही इज ऑलवेज इन गुड पोजीशंस, अच्छा मारा उसने, ही इज ऑलवेज इन गुड पोजीशंस यार, लकी नहीं बोल सकते अब, 2 गोल ऐसे मार चुका है वो, बट अच्छा मारा उसने। देन बेनरामा का गोल भी सही था। The goalkeeper has been gracious, as we may say. And I mean he's थोड़ा दिल भाग के दे रहे रोनाल्डो को, या तो डर है उसका, खौफ है, you can put it that way. खौफ नहीं, बट यार प्रेडेटर जैसा इंस्टिंक्ट भी है ना, ही रियलाइज ऑन दैट, ही फीड्स ऑफ दैट, एक मिस्टेक किया मैं मार दूंगा, तो रोनाल्डो का सही है वो चीज। बाकी गेम काफी टफ था यार, आई मीन सेकंड हाफ में ना ऑनेस्टली मैं भी डाउट करने लगा था कि जाएगा कि नहीं, बट इंटरनली आई वाज बिलीविंग ऑन एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस वो मार पाता, क्योंकि इतना सॉलिड था ना वेस्ट हैम का डिफेंस, और जुमा तो पता नहीं स्टेरॉइड्स पे था जुमा, सच मतलब क्या बैकलाइन कितना brilliant, he was in the air, he didn't give like Ronaldo even one ball to win. Exactly. Or like एंड पे भी डुअल्स अपने लूज नहीं किए उसने, एंड आई थिंक रोनाल्डो स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग दैट, इसलिए पेनल्टीज के लिए जाने लगा है। No, he was very well positioned and he was not letting Ronaldo on his space and stuff. But I wish लास्ट मतलब यंग बॉयज के अगेंस्ट जब तुम लोग हारे, ओले ने बहुत क्रिटिसाइज किया, तो अभी अप्रिशिएट भी करना चाहिए ना लोगों के, ओले ने जो डाले सब्स्टिट्यूशन वो दोनों दे कंबाइन टू गेट द विनर, बट उतना अप्रिशिएशन नहीं मिलता है, क्या है ये, क्यों ऐसा क्यों है, क्या होता है साइकोलॉजिकली? I tell you why I'm raising this point. I'm not trying to pull your leg. I'm raising this point because Tuchel को मिलेगा. I know 100% Tuchel को मिलेगा, because to be honest, we'll get to that match, but his substitutions also worked, and I think he'll be praised more than Ole. Is it because maybe he's proven, or he's like won trophies or something like that? तो साइकोलॉजिकली क्या होता है, दो चीजें, एक तो साइकोलॉजिकली इफ यू आर डूइंग समथिंग राइट तो इट इज नॉट एज अप्रिशिएटेड एज यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, इसलिए कुछ भी गलत होता है तो दैट कवर्स द एंटायर प्रोसेस, एंड उसमें अच्छा किया हुआ इज लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। दिस इज द प्रॉब्लम साइकोलॉजिकली। सेकंड, यूनाइटेड के साथ फैन बेस और नेगेटिविटी मीडिया बहुत अच्छे से ट्विस्ट कर सकती है, सो वन फॉल्ट इज मेड ह्यूज एंड वन गुड थिंग इज नॉट एज प्रेज्ड एज इट शुड बी। आज भी वैसे मुझे 2-3 चीजें मुझे नहीं पसंद आई, वैसे तो आई डोंट लाइक फ्रेड स्टार्टिंग एट ऑल, I don't want to see him in the playing squad, not even the starting 11. If he is given as many chances after being so shit in the midfield, उसको पास करना नहीं आता है, उससे बेटर पास तुम लोग जाके कर सकते हो। वैन डे बीक को उतनी चांस उसकी पोजीशन दे सकते हैं। If you are playing a double pivot also, Van de Beek can play alongside a McTominay or Matic if Pogba is playing left wing. मेरा यही पॉइंट है। आई डोंट वांट आयुष, ये भी मीडिया का ही शिकार है भाई, वैन डे बीक को लोग मीडिया बोल रहे थे आयुष के पीछे पड़ जाएगा वैन डे बीक। मैं फ्रेड के हटाने पे हूं, मुझे कोई भी चलेगा, तुम आप भी जाके McTominay और Matic में खिलाओ, मुझे वो भी चलेगा। ये लोग यूनाइटेड का बैच पहनते हैं, मैं अपनी टीम को सपोर्ट करने वाला भाई, फ्रेड कहीं मुझे रास्ते में मिल जाए तो मैं तो उसका पैर पड़ूंगा भाई, तो मेरी टीम के लिए खेलता है, आई सपोर्ट हिम, आई डोंट गिव अ फक इफ यू आर विनिंग एंड इफ फ्रेड इज प्लेइंग स्ट्राइकर, आई डोंट गिव अ फक अगर अपन जीत रहे हैं तो, ऑनेस्टली बोलो। वो अच्छा नहीं खेल रहा है ब्रो, he does something that nobody else does, technically तो बहुत वीक है, सबको दिखता है वो, सबको दिखता है कि पासिंग, I don't think he does anything, bro, वो एनर्जी लाता है मिडफील्ड में, बट एनर्जी लाता है, एनर्जी के चक्कर में, एंड ऐसा है कि वो कभी-कभी एक बॉल लूज करता है, 2 बार जीतता है, समटाइम्स ऐसा होता है, इट्स लाइक डिफिकल्ट टू फाइंड पॉजिटिविटी विद हिम, बट वो बहुत एनर्जी लाता है, he gives his all for the club, that's what all I'm looking for। मैं फैंस के पीछे पड़ता नहीं कि फ्रेड ज्यादा दे नहीं रहा है वो। सेकंड चीज, यंग बॉयज के बारे में ना यार, मैंने वो यंग बॉयज से जब हारे थे ना हम लोग ने, यूनाइटेड के एडमिन ने दे पुट अ पोस्ट ओले के बारे में, एंड समथिंग ओले वाज सेइंग अबाउट द गेम पोस्ट मैच इंटरव्यू में, एंड टॉप 5 कमेंट्स फॉर ओले आउट, और सब मोस्ट लाइक कमेंट्स थे वो। आई वाज लाइक फकिंग सरप्राइज कि इतना कैसे लोग इतने कैसे रिएक्शनरी हो सकते हैं यार, कि मतलब यंग बॉयज के सामने एक गेम हारा है, वो भी रेड कार्ड की वजह से हारा है, ठीक है यंग बॉयज से हारा है, स्टिल नो, बुरी चीज है, बट यार इतने रिएक्शनरी ओले आउट बोल रहे हैं लोग। But I think United का फैन, if I have to pick up the top clubs and see who is the most reactionary, थोड़ा अजीब तो नहीं कह सकता हूँ, रिएक्शनरी बोल सकता हूँ, सोशल यूनाइटेड है, बट यार मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था ना उस दिन पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते थे, तुम लोग मुझे किसी और साइड में देखते, मैं इतना मतलब पैशनेटली तुम लोग गुस्सा आता ना मेरे को, ओले आउट क्यों बोल रहे हो भाई, सपोर्ट योर टीम। इट इज जस्ट कि यूनाइटेड का फैन बेस बहुत फिनिकी है, मतलब एक कुछ हुआ तो पलट जाएंगे। Anything नहीं, but the flip side is
even if you win, there is too much noise. हाँ So you हाँ, have to take the good with the bad. Like we were 4 मारे like तो discussing on चैंपियंस, Instagram. हार गए तो हाँ. रेलीगेट, So, yeah. वो So भी you बीच have to में take, you रेलीगेट. have to balance it out and yeah. But But my I have problem to with point out Suyash is that I have one thing to say. Suyash हाँ. जो बोल रहा है कि फ्रेड टीम का प्लेयर है, सपोर्ट करूंगा, which is good. I will also do that. अगर मुझे मिला जाके, मैं तो पड़ोस में ही हूँ, यहाँ मिलके जाके उठ के उससे चाय भी पी लूंगा उससे जाके. But if I want to move ahead and behave like champions, I don't see Fred or like Dan James fitting in the side anymore. Only till we start winning, only till we win a title, then you're wrong. मतलब we were already behaving like champions. तू सोच इस सीजन के अंदर में टाइटल जीत गया, तो हम लोग ने ऑलरेडी वही चीजें की जो चीज को तू अपोज कर रहा है, समझ रहा है. हम लोग ने इस लीग के एंड में टाइटल जीत लिया हम लोग ने, तो फ्रेड वाज प्लेइंग एंड वी स्टिल वन. इट इज ऑलवेज राइट, मतलब इट इज ऑलवेज रॉन्ग until you do something that makes it right. Also, yeah, I also consider that we feel that he's weak in one aspect, but अपने को like I think we cannot just pick up on one player and पूरा conversation मतलब कि इसके वजह से हार रहे हैं वो वैसे. तो I think नहीं, I'm not saying वो Fred is like the easy option out, which I agree. वो easy option out है पूरी उसमें टीम में, because stars हैं, they are expected, and Fred is like छोटा बीच ही कड़ी है, which I agree. But अगर तू मैच देखेगा, मैच देखने में भी अगर मैं बोलूं चल ठीक है, पॉग्बा का ऑफ डे था आज भी, थोड़ा ग्रीनवुड भी थोड़ा आउट ऑफ सॉर्ट्स था, बट फ्रेड इज कंसिस्टेंटली, लास्ट सीजन में देखा था अपन ने, ये सीजन में भी देखा है, कंसिस्टेंटली मिसप्लेस करता है पासेस, एंड अ मिडफील्डर हु इज वेटिंग बिहाइंड द बैक, हु इज नॉट इवन गिवन बिग चांसेस. अगेन मीडिया एजेंडा ही है, व्हिच आई एग्री, बट उसको अगर उस लेवल पे चांस ही नहीं मिल रहा है, एंड समवन हु इज फॉल्टिंग रेगुलरली इज गिविंग चांस, वो थोड़ा ऑड लग रहा है. बट यार आयुष, वो अपना लेंस ना इतना डेवलप हो गया है ना कि हम लोग फ्रेड के फॉल्ट सीधे देखते हैं कि अब वो और वो हर कर रहा है, उसका वो गेम है, वो पास मिसप्लेस कर रहा है, वो टैक्टिकली वीक है, टेक्निकली वीक है, बट जो काम वो कर रहा है ना मिडफील्ड, वो अपने को चाहिए, जो एनर्जी वो डाल रहा है, वो रोनाल्डो तो बहुत कुछ, रोनाल्डो दो तीन जगह और गलत किया था. और वैन डे बीक नहीं डाल सकते, वैन डे बीक नहीं डाल सकते हम लोग, क्योंकि वैन डे बीक फ्रेड की जगह पे कैसे डालेगा. तू नंबर 6 अगर तुझे चाहिए कि तू वैन डे बीक डेवलप कर दे नंबर 6 में, तो तू डाल सकता है. ओले के प्लान्स डिफरेंट होंगे, नंबर 6 नहीं बनाना उसको वैन डे बीक में, तो नहीं डालेगा. वो डबल पिवट खिला रहा है ना मैकटोमिनी के साथ, मैकटोमिनी के साथ तू 8 खिला सकता है वैन डे बीक को, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग फ्रेड. ये ना ऑन पेपर मैं भी कर सकता हूं, गाली दो ऑन पेपर में भी कर सकता हूं. I think which is what Ole expects from him in the double pivot. Yeah. Which is very good against a team like Leeds, who is expansive and who will make you run. It is not good in such tight games. अभी काउंटर पे तुम लोग को दे ही रहे थे, मतलब बेंजामा वैसे ही दे रहा था अपने को, दोनों को लेके जा रहा था, और घंटा देता और 3-4 और गोल मार लेता. मैं बहुत खुश हूं सिलेक्शन मैं, बट वैन डे बीक नंबर 6 नहीं खेलना चाहिए. आई एग्री कि फ्रेड इज नॉट द टेक्निकली द मोस्ट ब्रिलियंट, ही कुड बी रिप्लेस्ड अगर हम लोग ऐसे ही फॉर्म में जा रहे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट यार लॉयल्टी का है, हम लोग ऐसे फैंस नहीं होने चाहिए कि फ्रेड अच्छा नहीं खेल रहा. अब यही टीम खिला के लीग जीत गया, तो फ्रेड वुड बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम. जितना परसेंटेज सबने डाला उतना परसेंट उसने भी डाला है भाई, तो फ्रेड का मतलब आई थिंक एट दैट टाइम ही विल बी प्रेज्ड मोर, बिकॉज़ बोलेंगे कि बेचारा मतलब वो पोजीशन के लिए था भी नहीं, बना भी नहीं था, बट अच्छा खेल गया पूरा सीजन, और वो कर रहा है ब्रो. आई एम ऑनेस्टली टेलिंग, कुछ भी हो सकता है, ऑनेस्टली टेलिंग यू, रिएक्शन सबका हट जाता है ऐसे. प्लस एडिंग मतलब चलो मूविंग फॉरवर्ड, चलो आई एग्री, चलो देख जाता हूं मैं फ्रेड के वो लेंस हटा दूंगा अभी पूरे सीजन के लिए. अबे यार, बट मैं जीतने के बाद भी फ्रेड से इतना डिसअपॉइंटेड हूं कि मैं एंजॉय ही नहीं कर पाया विन अपनी. And special mention to, I think it should go to Lingard and De Gea, because बहुत स्क्रूटनी में और बहुत गाली पड़ी है लास्ट सीजन दोनों को. नहीं, बट अभी द मैच, ओके Lingard scored penalty, तो आई थिंक मोयस ने बहुत बड़ी गलती की, बिकॉज यू कैन नॉट, एज यू वर डिस्कसिंग, यू कैन नॉट जस्ट ब्रिंग अ प्लेयर एंड एक्सपेक्ट टू स्कोर अ पेनल्टी. डेक्लन राइस था, आई थिंक ये भी ले सकता था अपना, लांजीनी था, और पैब्लो फर्नांडिस था, बहुत लोग ले सकते थे. आई डोंट नो, ये मतलब ठीक है, but I think what I was trying to get to is that like the Wolves game wherein you didn't play well but you got 3 points, this was also a game where you could have drawn but you got the 3 points, which should be the positive that you should take out, instead of picking up on what went wrong. क्योंकि वो West Ham है, it's not like मतलब you'll run over them या 4-0 away भी. इसलिए when you are saying कि ये दोनों को साथ में क्यों खिला रहे हैं, मेरे को लगा कि that might be the reason, because ट्रांजिशन और काउंटर पे वो लोग के पेसी जो 3 है उन लोग को रुकाने के लगेंगे. Which is what was the thought. You've got it right. You've got it right. What you want, there's no need to point out
यार अभी फिक्सचर्स इतने थिक एंड फास्ट आने वाले ना, देयर इज नो नीड टू पॉइंट आउट नेगेटिविटी। और अभी तुम लोग को माहौल पॉजिटिव रखने का सारे फैंस को। चल अपन तो घर बैठ के देख रहे अपना इतना करता नहीं है, बट इन और स्टेडियम फैंस तो फिर भी जाके देखते हैं, तो दे आर तो स्टेडियम पे जाएगा आयुष कभी ना कभी, नेक्स्ट एक दो वीक या दो, लाइक इन 1 मंथ। अब तो आगे ऐसे लेके चलूंगा मैं, कुछ भी जीरो नेगेटिव। उसने एक डाइव भी मारा तो सपोर्ट। I think the right thing would be you take a Fred jersey and go to the game so that you can't, you know, diss him. मतलब तू बुरा बोल ही नहीं सकता, आपका जर्सी पहना है। But the good part is कि how we have progressed है कि वो सब जो ड्रॉ जो एक पॉइंट आ रहा था ना, उसको हम 3 में कन्वर्ट अप कर रहे हैं। और ना चैंपियंस का ना एक मैंने देखा एक नेचर होता है, जो एंड में दे स्टार्ट फाइंडिंग अ वे टू स्कोर गोल्स एंड गेट 3 पॉइंट्स आउट ऑफ गेम्स दैट आर लुकिंग लाइक दे आर जस्ट गोइंग टू ड्रॉ। तो 1-1 हो रहा है बट एंड में 90th मिनट गोल मार दिया सिटी के साथ। वी सॉ दैट लास्ट एनी हाउ, लाइक कोई भी स्कोर करे, कुछ भी हो जाए, इट्स विनिंग, व्हिच यू गाइस आर शोइंग। 2-3 गेम्स वो साइन आ रहे हैं, व्हिच इज। और मैं हाइप नहीं कर रहा कि भाई यूनाइटेड अभी टाइटल कंटेंडर ही बन गया है, बट चेल्सी यूनाइटेड पे क्लोज रहने वाला है। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू से। बस इतना। चेल्सी आर स्टिल आई थिंक अबव, चेल्सी है अबव। I think Liverpool and City are also up there. But yeah, you guys are also coming in the same bracket जो last season maybe नहीं थे. That's how we can put it. So let's चलो United का तो like you guys got away with it if I have to put it in a way. क्योंकि 2-2 हो सकता था to be honest. वो डिहाया ने सेव कर लिया and but Ronaldo का भी bro could have been given a penalty. You never know. ये हक से जीते थे to be honest. I'll not say कि 2-1 मतलब we played much better than West Ham. I think we deserved a win. और रोनाल्डो का तीसरा वाला तो पेनल्टी था ही, मैं मानूंगा ही नहीं अगर वो बोल रहा है कि वो गिरने वाला था, बिकॉज़ ज़ूमा पूरा लेके चढ़ गया था यार, वो बिस्तर लेके घुस गया था उसके अंदर। थर्ड वाला कुछ वो क्यों नहीं दिया, इसका रीजन वही था कि वो अगर और डेट 1 सेकंड भी अगर वो मतलब जो भाग रहा था वही मोमेंटम में रहता ना, उसने वो लेफ्ट लिया, वो पहले ही मतलब कि भाई थोड़ा सा गिरने के उसमें लग गया, आने ही वाला है तो मैं गिर जाता हूं, वो देख के नहीं दिया। हाँ बट स्टिल ब्रो इसके लिए सुआरेस को तो गाली देता है। इसको सम अप करते ये यूनाइटेड के, इसको यूनाइटेड का यंग बॉयज से लाइक रेड कार्ड था, वी वेंट डिफेंसिव, वी लॉस्ट, इट्स ओके। वेस्ट हैम का फिर भी आई विल से डिजर्विंग विन, नॉट द मोस्ट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय यूनाइटेड बट इट्स वेस्ट हैम अवे एंड वेस्ट हैम आर ऑन मतलब ऑन सॉन्ग विद देयर दे आर ऑन अ हाई, या इसलिए उनको हराना है, रोकना। आई थिंक एंटोनियो भी मिस कर रहे थे वो, बट फेयर इनफ, ग्रेट फॉर मी। मूविंग ऑन, ठीक है, इट वाज अ गुड विन। सो मूविंग ऑन फ्रॉम यूनाइटेड टू let's talk about Chelsea, Spurs versus Chelsea first, and then we'll move on to the City game. So Spurs versus Chelsea. Okay, I'll give you my opinion, and then I can take your guys' opinion. Ayush, जो तू नूनो को सस्ता मोरिनियो या whatever मोरिनियो 2.0 बोलता है, I don't know if you saw the first half. They played, according to me, they were better than Chelsea. I'm not afraid to say they were better than Chelsea until Tuchel in the second half changed. माउंट को निकाल, और ये दैट इज आई एम प्रेजिंग तुशेल कि वो उसने ये नहीं निकाला माउंट है मतलब अच्छा है, स्टार है, अपना टैलेंट है, भाई नहीं मतलब निकाल लिया। 45 मिनट पे कांटे लाया वो मिडफील्ड में, क्योंकि उन लोग सुपीरियर हो रहे थे, बिकॉज व्हाट वाज हैपनिंग इज दे वर ट्राइंग टू आइसोलेट सन विद थियागो सिल्वा के 1-on-1, या तो उसके पीछे जा, और बिकॉज ऑफ पेस एंड एवरीथिंग, एंड केन स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम लेफ्ट स्ट्राइकर होके भी, सो डूनो tactically try to change it and they were at it like 20-25 minutes पहला तो मेरे हिसाब से dominate किया। Obviously Chelsea had their chances on the counter which is मिलना एक दूसरे बहुत चढ़ गए थे, which is what I liked. I'm saying I like the approach because it was an attacking approach. वो pan out नहीं हुआ, second half में हो गया 3-0. That's all credit to Chelsea and Tuchel. But I think he tried to attack and he did attack, just that he didn't get the result his way, which is obvious it can happen. But हाँ तुम लोग ने how did you all see the game बताइए। Ayush, you want to take it first? Yeah, why not? Yeah, I will still say he is Sasta Mourinho because you mentioned all these tweaks, and I don't know if you will consider this, but Mourinho also had these tweaks in his bank. ये जो छोटे मोटे, he played Kane as a number 10 instead of number 9, वो पीछे आगे पीछे कर ही देता था। They were at it, they were pressing from the front, everybody, Dele Alli, Ndombele and Lo Celso, और वो अपना होइबर्ग का मिडफील्ड, मतलब they were at it. They try to passing जो है Chelsea का possession जो है उनका, to bringing out the play from the back. Jorginho by Ballon d'Or contender कितना pressure में था first half until second half में, तो ठीक है कांटा, he was doing so many balls because Spurs played so well and they were pressing so well from the front. So
it's not that they sat back, because obviously when you say Mourinho or when you say that they are a defensive team, तो वो लोग 4-4-2 के blocks बना के पीछे खड़े हो जाते हैं ना. But no, not that. That's what I felt in the first half. Second half में जब तक कांटे नहीं है, midfield superiority चेल्सी ने नहीं ली, they were not able to win, and obviously corner से गया, and then the और momentum ब्रो shifted. सबसे बड़ी बात ये That's है what I felt. कि स्पर्स एंड चेल्सी वेंट हेड टू हेड. फर्स्ट हाफ काफी क्लोज था, स्पर्स वर एजिंग इट, मुझे भी लग रहा था स्पर्स वाज द बेटर टीम. बट सीन ये है कि यार नूनो को टॉप लेवल हेड टू हेड, लाइक ही इज द स्पर्स मैनेजर, मतलब ही इज नाउ द स्पर्स मैनेजर जस्ट नाउ, मतलब ये सीजन के पहले. तो टॉप He's लेवल got experience. मैनेजमेंट, या ही हैव एक्सपीरियंस. उसके बाद क्योंकि ट्यूशल ने कैसे अडैप्ट किया है, उसने कांटे डाला, सब कुछ अडैप्ट, मतलब उसने अडैप्ट बहुत बढ़िया भाई. मैं तो सोचा ना, मतलब क्या भाई, बंदे ने 1 मिनट नहीं सोचा, 40-50 मिनट पे लेके आया, सॉल्यूशन निकाल दिया और चालू हो गया खिलवाना. इसलिए फिर ओवरकम कर. बाद में क्या हुआ, I'll add एनर्जी. one small thing also. The difference between Spurs and Chelsea is Chelsea has a very good squad. Spurs don't have a, like for example तूने बोला माउंट निकाल के कांटे डाल दिया. माउंट निकाल के कांटे, तू प्लेयर का लेवल देख रहा है. यहाँ पे उसने वो एंडोम्बले निकाल के स्किप डाला था, जो आई थिंक स्पर्स में लास्ट सीजन खेलता भी नहीं था. उसके बाद क्वालिटी डिफरेंस है. मतलब मैनेजर्स अडैप्ट किया टैक्टिकल इतना अवेयरनेस और इतना श्रूड डिसीजन लेना मैंने इतने लोगों में नहीं देखा. किसी को करना भी हो ना तो दे वेट 15-20 मिनट्स, कैसा चल रहा है एक बार देख लेते फिर चेंज. यहाँ पे नहीं भाई, नहीं चल रहा है. क्योंकि ब्रो ट्यूशल बहुत कॉन्फिडेंट भी है एंड रिजल्ट पूरा बदल दिया यार. कॉन्फिडेंट भी, एज सुयश सेड, वो कॉन्फिडेंट भी, वो यूसीएल विन करके आ रहा है अभी, तो ही इज कॉन्फिडेंट. मैं लेकिन एक चीज बोला तुम लोग को, ट्यूशल बहुत कॉन्फिडेंट है. उसने गेम देखा, ही न्यू द सॉल्यूशन. वो इतना कॉन्फिडेंट है कि उसने हेजिटेट नहीं किया. जैसे तू बोल रहा है ना, 15 मिनट रुका नहीं वो. ही सॉ क्या प्रॉब्लम हो रही, तुरंत सॉल्यूशन पे उसने काम किया. चेल्सी ने तुरंत इंप्रूव किया, दे वन द गेम. इट्स गोइंग ऑल गुड फॉर ट्यूशल. न्यूनो ऑन द अदर हैंड, फर्स्ट हाफ टीम ने अच्छा किया, मतलब दे वर हेड टू हेड. ट्यूशल ने जो अडैप्ट किया, न्यूनो वो चीज अडैप्ट नहीं कर पाया. तो वो जो चेस गेम होता है ना बड़े मैनेजर्स का, वो करने में टाइम लगेगा उसको. ही इज नॉट मरीनो. प्लस तुम लोग मानते हो स्कोर लाइन 5-6-0 हो सकता था इसका? हाँ, क्योंकि अलोंसो चेल्सी का हो सकता था. बट अगर मैं तो बोल ही रहा हूँ, सेकंड हाफ में ही फर्स्ट, अगर इफ 45 मिनट्स फॉर 90 मिनट्स ना, तो स्पर्स जीत सकता था. 45 मिनट्स तक आई वुडंट गिव टू चेल्सी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Until he did the changes, Chelsea were not superior, is what we are trying to say. If I would be Nuno ना, मैं सिर्फ एक चीज से डिसअपॉइंटेड होता कि तुम लोग का एनर्जी कैसे ड्रॉप हो गया, टू बी ऑनेस्ट, एज अ कोच, एज अ मैनेजर. क्योंकि स्पर्स का ना, as soon as Chelsea started playing their football ना, स्पर्स का एनर्जी, और जब एक गोल खाया तो कितना गंदा ड्रॉप हुआ ना एनर्जी. It was like they were not ready to give the fight, and they thought among themselves कि नहीं कर पाएंगे भाई. Honestly, एनर्जी इतना गंदा ड्रॉप हुआ फर्स्ट हाफ के बाद. मुझे बिलीव नहीं था कि टीम है. एक बार ये थियागो सिल्वा, व्हाट अ गेम ही हैड, इवन एट द बैक. जो उसने हेडर भी निकाला, he was how he started off outside the box. यहाँ पे कोई मार्क नहीं कर रहा है, धीरे धीरे आया. डेले को तो मतलब वो खा गया, हेडर मारा. बट डिफेंसिवली ऑल्सो जितना भी प्रेशर था उस पे, जितना भी सॉन को टैकल करना था, बहुत ब्रिलियंटली किया इन स्पाइट ऑफ हिज एज. इसने एक सिमिलर एक सेकंड शॉट भी लिया था जो गोल रुका लिया रॉलिस ने, वो भी गोल जाता. सिमिलर एक था हेडर. वैसे देखे जाएंगे तो अटैक्स तो तुम्हारे गेम में भी हुए, तुम भी 5-1 जीत सकते थे. बट वो हर अटैक अगर कन्वर्ट होने लग गया तो फिर तो फीफा. अभी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, I used to बोल, ठीक है बोल, उसको बोलने दो थोड़ा. कंट्रोवर्शियल ओपिनियन ये है कि नूनो ट्राई टू चेंज समथिंग, ही ट्राइड टू डू समथिंग व्हिच इज नॉट डूइंग, यूजुअली नॉट डूइंग. क्या हुआ उसके बाद? फिर 3-0 हारे ना. फैन जो यूनाइटेड फैन जो इंटरनेट पे रहते हैं वैसे ही बात कर रहा है. मैं तुम्हें कंट्रोवर्शियल ओपिनियन दे रहा हूं कि स्पर्स ने क्या किया बड़े गेम में. ये सब बड़े गेम में ट्राई करने वाली चीजें नहीं है. अटैक करने की कोशिश की, जो उसको अक्यूज कर रहे थे कि वो डिफेंसिव है, वो मतलब वो नहीं था. समझ रहे मेरा पॉइंट है. चेल्सी वाज नॉट द गेम टू ट्राई दिस आउट. Fair enough. Moving on from Chelsea to, let's move on to our Chakma of the Week section. That game was Manchester City versus Southampton. तो पेप ने काफी मतलब लीड किया, फैंस आ जाओ देखने. चलो अगर फैंस ने सुनी भी होती, बट देन 0-0 was not the ideal result to give to the fans. So yeah, a word about City and how they played. सोचना DDLJ मूवी देखी है तुम लोगों ने? उसमें वो कबूतर को बुलाता है ना, आओ आओ करके, कबूतर आके दाना नहीं दिया उसने, ऐसा हुआ सिटी साउथहैम्पटन. भाई साउथहैम्पटन बहुत अच्छा, मतलब we underestimated how good Southampton is defensively. और रैल्फ हैसन, it looks like सिर्फ पैशन नहीं है बंदे में,
वो करता रहता है सीजन आउट, मतलब एवरी सीजन ही मतलब ही हैज पैशन ऑन दिस। सस्ता क्लॉथ, ही सस्ता सस्ता क्लॉथ क्लॉथ है यार, वो टैक्टिकली बहुत अच्छा, आई मीन आई एम इम्प्रेस्ड बाय हिम। और साउथहैम्पटन ने honestly वो लोग के पास भी chances थे, to be honest. I saw highlights, I did not see the entire game, but they had chances to score as well. So I mean, yeah, fair game. 0 should be a fair result. लिवरामेंटो Fantasy भाई लिवरामेंट तो भाई पूरा चेल्सी पूरा जो एक दो उसका सीजन सेंटर के में बाद एक तो वापस बुला लेगी। सिटी के साथ चेल्सी एक प्लेयर है प्रॉब्लम वो, क्या है कि तो उसको दे आर बुला मिसिंग लेगी अ वापस। स्पार्क, आई फील समहाउ। अरे कभी De Bruyne आएगा, सब बदल देगा, सब अरे वो क्या चेंज हो होगा कि जाएगा। एक मैच में 5-6 मार देंगे और एक मैच में ब्लैंक कर देंगे। दिस इज हाउ आई थिंक दे आर मिसिंग अ स्पार्क, व्हिच इज आई व्हाट आई एम सेइंग सिंस द फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन। स्पार्क ही कंसिस्टेंटली एक अच्छा नहीं खेल पा रहे। ऑल्सो ग्रिलिश भी आया, ही इज प्लेइंग वेल, बट नाउ व्हाट ही यूज्ड टू डू एट विला, ही वाज द मेन मैन, अवे अटैक यूज्ड टू गो थ्रू हिम, अब वो नहीं होने वाला। यहाँ पे वो बेसिक प्लेयर है, ही इज जस्ट अनदर प्लेयर। वो बॉसमैन जैसा मेंटालिटी नहीं मिल सकता ग्रिलिश को अभी, क्योंकि यहाँ पे नहीं बट नहीं है। स्क्वाड है पूरा। बट मैंने मैच देखा था, मतलब आई सॉ इन बिट्स एंड पीसेस, मैंने 20 मिनट इधर दिखा और 20 मिनट देखा, तो ग्रिलिश ने चांसेस इधर ही बहुत बनाए थे, बट स्टर्लिंग ने हगा, किया कर ही रहा है। हेजूस ने हगा, हगे हैं ये लोग सिटी वाले। आई थिंक थोड़ा सा क्रेडिट ना आयुष के पॉइंट को देना पड़ेगा, जब क्योंकि वो 3 वीक से अभी बोल रहा है स्पार्क मिसिंग है, तो थोड़ा सा स्ट्राइकर का क्रेडिट ना बोलना पड़ेगा। मैं तो कह ही रहा हूँ, स्ट्राइकर और बिकॉज फिनिशर का। स्ट्राइकर एंड फिनिशर का जो लास्ट सीजन था प्रॉब्लम, जो गुंडोगान सॉल्व कर रहा था, नाउ हाँ अभी इस टाइम ग्रिलिश आ गया, सो ही हैव टू कम अप विद द गोल, बिकॉज गुंडोगान वो उतना अटैक नहीं कर रहा जितना लास्ट सीजन कर रहा था, which is what I think Pep and with their team will also, you know, उनको भी समझेगा, and then And they will eventually change things. Pep would be frustrated bro, because उसने फैंस को आने बोला, फैंस फिर भी I don't know if they turned up, और उसके बाद भी निलोल खत्म हुआ है, he'll be frustrated। और मैंने यूजुअली देखा जब Pep फ्रस्ट्रेट होता है ना, तो it goes down in a downward spiral, मतलब थोड़े नेक्स्ट 2-3 वीक में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, मैंने कभी यूजुअली नोटिस किया है। बट लेट्स सी, क्योंकि सिटी है, स्क्वाड ही ऐसा है कि पेप भी कोई भी मूड में हो तो भी जिता देगा। On their day they can be the best. ठीक है, so that was the chakma of the week. So let's talk about some other games which were also very decent, or you know, turned out to be good games, were good watch. कौन सा गेम से स्टार्ट करना है? आई थिंक ब्रेंटफोर्ड आर डूइंग गुड, तो शाउट आउट टू ब्रेंटफोर्ड, अच्छा खेल रहा है, टोनी ने भी परफॉर्म्ड वेल। आई सॉ द गेम, वुल्व्स का वही सीन ब्रो, एडमा ट्रेओरे को फैंटेसी में लेके बहुत पछता रहा हूं मैं, क्योंकि भाई ही इज ओनली एक्सपेक्टेड गोल्स पे EXG होना चाहिए उसका भाई, कुछ अलग ही। आई थिंक वुल्स, पता है वुल्स के प्लेयर के साथ साथ वुल्स की पूरी टीम ही ऐसी है कि दे आर जस्ट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, बट उनका एंड प्रोडक्ट नहीं है। थोड़ा सा हार्ड, मतलब हाँ आई नो व्हाट आई वाज जस्ट सेइंग, बट ब्रूनो लाग वो पान खाने वाला मैनेजर, भाई अच्छा मैनेजर है वो, बट थोड़ा सा ना आई थिंक वही फिनिश, आयुष का पॉइंट सही है, बट टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा और करना चाहिए लोगों को फिनिशिंग, जो आएगा धीरे धीरे जो आएगा। एंड बेंफोर्ड आल्सो, मतलब they played well. टोनी इज, आई थिंक अगर तो नेक्स्ट सीजन ब्रेंटफोर्ड टिक गई प्रीमियर लीग में, तो टोनी ब्रेंटफोर्ड में नहीं टिकेगा, what I think, होने वाला है natural because he's a striker who not only looks for goals, he links up plays very well, मतलब थोड़ा deep आके playing making, and he has those balls and everything, he has a good vision as well. So moving on to the next match, which was Newcastle versus Leeds, the Ballers FC match, because there was Ted Maximin and there was Rafinha, so ended up in a draw, but it was a fun match for those who were watching it. So क्या thoughts about it? इट वाज एंड टू एंड स्टफ, मतलब मुझे लग रहा था कि पहले हाफ में तो कोई टीम रुकी ही नहीं, सब देते ही जा रहे थे, बॉल मिला भागो 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 भागो, बट 1-1 सीन द फेयर रिजल्ट, अच्छा था वो। And also Rafinha was a doubt before the match, which is why I did not buy Rafinha in my fantasy, and I regretted it after that because goal मार दिया साले ने, and honestly but we all had Bamford and he gave an assist. Yeah, so good for fantasy. Honestly, that's what all I'll say, because I couldn't watch the match a lot because I was on my job at that time. मतलब वो चकमा असिस्ट और चकमा गोल ही था एक तरीके से, दोनों चले गए बस। Yeah. And कौन से matches? So that was fair enough. Brighton versus Leicester was a match जो थोड़ा controversial था because of the penalty decision and everything. So Brighton won at the end of the day. And so thoughts about that? I read a lot of articles about it कि Leicester has been VAR has been unfair on Leicester a lot in this match. I still have to go into the details, but जो भी articles है, जो भी चल रहे थे, सब Leicester के against unfair ही बोल रहे थे VAR का। Yeah, the penalty was unfair is what they were trying to say. जो मौके ने मारी है,
And Brighton for looks the solid, bro. Leicester, Brighton Yeah. looks solid. Keeper भी सही है, Sanchez, Duffy and Dunk भी सही है पीछे. And Leicester honestly is a team like I don't even know if they're playing Premier League this year. Nobody really gives a fuck about Leicester. और end में अगर if you even start giving a fuck about Leicester ना, तो end में वो लोग पता है क्या तुम्हारा इतना hopes बड़ा के end में top 4 नहीं finish करते. तो honestly I'm not too concerned about Leicester is someone वो जो कभी किसी का जगह खा लेगा. हाँ खा कोई लेता है. टीम का जगह खा लेता है. वो दो बंदर की लड़ाई में बिल्ली लेके चली जाती है, वैसी है लेस्टर. Somewhat. So yeah, that was it. Then the next match which we can discuss was Aston Villa versus Everton. Bay, he came, he saw, he conquered, and he subbed off. Yeah, he was injured. That was the match. पूरा गेम 10 मिनट में चेंज हुआ. मतलब ही केम, ही कॉन्कर्ड एंड देन ही मेरा हो गया, मैं मुझे ऑफ चाहिए, तो 10 मिनट ऑफ भी लेके चला गया. And honestly, I saw Bailey coming off. Like people are too concerned about सब पूछ रहे थे Bailey तो सही है ना, तो सही है ना. Bailey like हाँ मैं सही और निकल रहा था. मैं ठीक हूँ यार. मैंने गोल मार दिया, अपना हो गया अभी. इतना ही खेलूंगा मैं. पोस्ट मैच में उसने बोला मैंने शॉट बहुत जोर से ले लिया, इसलिए मुझे दर्द हो रहा था, तो मैं सोचा प्रिकॉशन ले लूं और बाहर आ जाऊं. उसमें लिटरली ये बोला उसने. हाँ बहुत जोर से. I have a good run of fixtures coming up, so I didn't want to take it to मतलब I didn't want to aggravate injury, वो जो भी बोला. To share because he did his job and he said okay bye, अब तुम लोग संभाल लो. And it was surprise. Honestly, Aston Villa Everton could have been a surprising result, चकमा of the week, क्योंकि Everton is like on a good run. और राफा का सुन रहे वो लोग. राफा काफी pissed off था honestly after post match interview में भी. Like on paper you would expect Everton to win, so yeah, that could have been one of the chakmas. But correct. Honestly, they were missing Calvert-Lewin, Richarlison, so I wouldn't read too much into this fixture. Like it's a one-off. Aston Villa 3. Yeah. True. So yeah, moving on. I think we covered basically more or less every fixture. Yeah. So yeah, let's end it with a positive note because our first video, it had quite decent views, which we were not expecting. Like we were not expecting an X figure, but we got a Y figure, which was good. So yeah, anything you want to guys end it with? I just want to say if you guys like our videos, just keep watching, liking, subscribe the YouTube channel, follow us on Instagram, Twitter, do the usual stuff, and yeah, just keep watching. We'll try and keep putting on content as much as we can. And yeah, thanks for the love, everyone. Thank you guys for supporting us in our last video. As Yash mentioned, there were unexpected views, which was very interesting and exciting for us, and hope we'll continue in this manner and keep giving you good content and Lingard forever. रात्रि शब्द खैर फिर मिलेंगे next Sunday. Bye guys. Bye guys.